Good morning. Good morning, all of you. Welcome to my class. This is for Degree 3 Geology Honors. Glycogenesis. What do you mean by glycogenesis? The food we eat are turned into glucose. The food we are eating in our daily diet are turned into glucose and released as energy to be able to use for the body. And the food is turned into glucose and then it is released as energy to be used by the body. The molecule of glucose that is stored in the important organs of the body is called glycogen. और जो ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है और इसी ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज या ग्लाइकोजन और जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस. मीन्स द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज नोन एज ग्लाइकोजन synthesis. It is stored in the various parts of the body such as kidneys, liver, brains and muscles. It is only released if the glucose in the blood is used up for all the physical activity. The stored glycogen will be released when there is deficiency of glucose in blood after physical activities, then it will turn into glucose. Or once the body runs out of the glucose supply, additional energy is immediately released in the form of glycogen. Now what is glycogen? We will study in detail. The glycogen is a polysaccharide, homopolymer. Homo means same तरह के मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए होमो. और पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है. तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड मीन्स और होमोपॉलीमर डिपॉजिटेड इन द टिश्यूज एंड स्टोर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट. ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज. It occurs in cytoplasm as granules. Granules also contains the enzymes and regulatory protein which is required for the synthesis and degradation. It is stored in as granules और उस granules में enzymes और proteins present हो जाए जो इनके बनने और टूटने दोनों के लिए effective होते हैं. It's act as an important energy reserve for the body. It is stored in liver and skeletal muscles. Glycogen stored in the muscles will be utilized for the energy requirement of muscles only. जो muscles में glycogen stored है वो सिर्फ मसल्स के रिक्वायरमेंट के लिए यूज होंगे. while glycogen stored in the liver will be used for the energy requirement for the rest of the body. अब बाकी बॉडी के लिए जो लीवर में ग्लाइकोजन मौजूद है उससे वो यूज होगा और मसल्स में जो है वो सिर्फ मसल्स के लिए यूज होंगे. Now glycogen is a branched polymer of a glucose. ये एक branched polymer है. Polymer है बताया था, homopolymer मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं. That means it is an polymer of glucose and therefore सिर्फ ग्लूकोज है, ग्लूकोज सब एक जैसा, therefore homopolymer. तो ग्लूकोज रेसिड्यू are linked linearly by alpha 1,4 glycosidic bond. और बीच बीच में इनमें ब्रांचिंग भी होता है बाय 1,6 glycosidic linkage. In next slide you can see in the figure the alpha glycosidic bond give rise to the helical polymer structure. Glycogen is hydrated with 3 to 4 parts water and form granules in the cytoplasm. और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, द प्रोटीन दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनिन. ये अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, विच इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजन सिंथेसिस. इट इज लोकेटेड एट द कोर ऑफ ईच ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स. और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के कोर में ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन होता है. ग्लाइकोजन इज एन एनालॉग ऑफ स्टार्च विच इज द मेन फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज स्टोरेज इन मोस्ट प्लांट्स, बट स्टार्च हैज फ्यूअर ब्रांचेस एंड लेस कॉम्पैक्ट देन ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है, तो ये कम जगह में ज्यादा एकोमोडेट हो सकता है. दिस यू कैन सी इट इज एन ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल. ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये जो ये पूरा एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, बहुत सारे ग्लूकोज बने हैं और ये जो बीच में ये बॉन्ड है दिट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दीज आर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये सभी
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस इज कार्बन नंबर 1 of this glucose. This is carbon number 1. This is carbon number 4. तो 1 और 4 के बीच में लिंकेज है, इसीलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये भी कार्बन नंबर 1 है, ये भी 4 है. ये कार्बन नंबर 1 है, ये 4 है, ये दिखा हुआ आप देख सकते हैं. तो ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं. किससे जुड़े हुए हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये इसका ब्रांचिंग है. अब ये देख सकते हैं इसके ये कार्बन नंबर 6 ये है. दिस वन इज कार्बन नंबर 6. दिस वन इज द कार्बन नंबर 6 इज आउटसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग. और ये कार्बन नंबर 6 जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना रहा है. देयरफॉर ये ब्रांचिंग हो रहा है. दिस इज स्ट्रेट चेन, ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग हो रहा है, ये ब्रांचिंग है. तो ब्रांचिंग का जो बॉन्ड है दैट इज 1,6 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ये जो लीनियर लिंकेज है दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और जो ब्रांचिंग का लिंकेज है वो अल्फा 1,6 glycosidic bond. This is the structure of glycogen. Now glycogenesis you can see, if the liver stores the glucagon as the liver is storing glucagon, glucose as a glycogen. और glycogenesis ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड सुगर्स में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट है वो ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से लीवर में स्टोर हो जाएंगे. और अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो ये वापस दूसरे प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, इट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलिसिस. और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस और लिसिस वर्ड का मतलब होता है टूटना. तो ग्लाइकोजन का बनना इट इज ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन का टूटना दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस. So it is a process by which glycogen is formed from glucose. Glycogen is synthesized according as per the demand of energy. जितना glycogen की energy की demand होगी उतना synthesize होगा. If there is a sufficient amount of insulin in the body, excess glucose will not be used and will store in the form of glycogen. अगर body में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही से हो रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो ग्लाइकोजन के रूप में. ये प्रोसेस है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस में क्या होता है. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस? स्टेप्स मैं अभी बताऊंगी. द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्लाइकोजेनेसिस इज टू मेक श्योर दैट बॉडी डज नॉट रन आउट ऑफ द ग्लूकोज. वो उसमें वही होता है कि ग्लूकोज में कमी नहीं हो. कि हम अगर हमने खाना नहीं खाया, कभी व्रत करते हैं या कुछ होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइट नहीं मिली तो जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो जो हमारे बॉडी में लीवर में और मसल्स में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो वापस ग्लाइकोजिनोलिसिस के थ्रू टूटकर ग्लूकोज में बन जाएंगे, ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो. ग्लूकोज इन एज इम्पॉर्टेंट एट इट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स. वो बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. विदाउट एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, वाइटल ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे. इट इज द हार्मोन और इसको इंसुलिन जो है ट्रिगर करता है, बिकॉज इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इसीलिए ग्लाइकोजेनेसिस को भी इंसुलिन ट्रिगर करता है. दिस पर्टिकुलर हार्मोन हैज एन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द लिवर सेल. इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस एंड इट सेम टाइम इट इनहिबिट्स. अगर ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा तो ग्लाइकोजिनोलिसिस को स्टॉप करेगा. Now this is the pathway. पाथवे जो हमने अभी आगे वहां पे दिखाया था, फिर हम उसको करेंगे. What are the steps of the glycogenesis pathway? The pathway of glycogenesis includes a series of steps and the result in complex glycogen formation in the cytoplasm of the liver and the cells of the muscles. The steps of glycogenesis are as follows. Number 1 step is glucose phosphorylation. It is the initial phase in which glucose is phosphorylated.
मतलब ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, तो ये कहाँ से ऐड होगा? एटीपी के थ्रू। एटीपी, एक एटीपी यहाँ पे ये एनर्जी टेकिंग रिएक्शन है, तो एक एटीपी यहाँ यूज होगा, एटीपी से वो एटीपी वापस चेंज हो जाएगा एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो एक फॉस्फेट कहाँ गया? वो ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया, और किस पोजीशन पे अटैच हुआ? ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे हो गया, देयरफॉर इसीलिए उसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में होता है। इट इज कैटेलाइज्ड बाय ग्लूकोकार, हर रिएक्शन के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। तो अगर ये लीवर में, ये ग्लाइकोजेनेसिस अगर लीवर में हो रहा है, देन द एंजाइम विल बी नोन एज ग्लूकोकाइनेज। अगर ये ग्लाइकोजेनेसिस मसल्स में हो रहा है, देन द एंजाइम विल नोन एज हेक्सोकाइनेज। नाउ कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, अब एक फॉस्फेट ऐड हो गया, लेकिन किस पोजीशन पे ऐड हुआ? पोजीशन 6 पे। 6 पे ऐड हुआ, अब 6 का शिफ्टिंग हो जाएगा, मतलब आइसोमेराइजेशन हो जाएगा, 6 से फॉस्फेट चला जाएगा 1 पे, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा। और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज will catalyze the conversion. Now the important step is step 3, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की जैसा एटीपी में एडेनिन होता है, वैसे यूटीपी में यूरेसिल होता है। इट इज यूरिडीन इन ट्राइफॉस्फेट अटैच टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अभी जो इसके पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, अभी हम लोग फिर देखेंगे फिगर में, अगेन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, उसमें ये अटैच हो जाता है क्या? यूटीपी। द थर्ड स्टेप फोकस ऑन द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज 1 phosphate to UTP, therefore forming active nucleotide UDP glucose, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। यहाँ भी यूडीपी से एक फॉस्फेट यूज होता है, तो ये यूडीपी हो जाता है, एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है पायरोफॉस्फेट के रूप में, और बच जाता है यूडीपी, और ये यूडीपी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाता है। यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, एक फॉस्फेट पहले से था और ये दो इनके साथ आ गया, द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सच रिएक्शन, और इस रिएक्शन को चलाने वाले एंजाइम है, उनको कहते हैं यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास क्या हो गया? यूडीपी ग्लूकोज हो गया। अब यूडीपी मतलब जो हमारे पास जो ग्लूकोज था उसके साथ एक यूडीपी की मॉलिक्यूल अटैच हो गई। नाउ यूडीपी ग्लूकोज अटैच टू अ ग्लाइकोजन प्राइमर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की बात की थी जो ग्लाइकोजन में होता है। अब वो ग्लाइकोजेनिन जो है यहाँ पे प्राइमर का एक्ट करेगा ताकि दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ के उसमें ऐड कर सके। ये व्हाट इज द ग्लाइकोजेनेसिस? में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन होगा, एक के साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ते जाएंगे। अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन, जो पहले से एग्जिस्ट ग्लाइकोजन है, उनका एक छोटा टुकड़ा सर्व करेगा प्राइमर के जैसा, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस। द ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज जो इसके पहले बना था will be accepted by the protein known as glycogenin. The initial glucose unit is attached to the उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा, और इसका यूडीपी ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ग्लाइकोजेनिन का टायरोसिन जो है वो अटैच हो जाएगा। द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ट्रांसफर्ड टू ग्लाइकोजिन, और जो यूडीपी के साथ जो मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का वो ग्लाइकोजेनिन के साथ अटैच हो जाएगा और यूडीपी अलग हो जाएगा, which will then takes up for the glucose residue forming the fragment of primer. It will be the one to accept all glucose. और उसके बाद अब ये एक प्राइमर तैयार हो गया, ग्लाइकोजेनिन के साथ एक ग्लूकोज अटैच हो गया, ये प्राइमर तैयार हो गया। अब ये दूसरे यूडीपी ग्लूकोज में से ग्लूकोज को लेते जाएंगे और यूडीपी रिलीज करते जाएंगे। ग्लाइकोजेनिन के बारे में अभी हमने बात की थी, थोड़ा डिटेल में उसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। इट इज द प्राइमर ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस यहीं से शुरू करता है, इसलिए इसका ये प्राइमर है। इट इज अ प्रोटीन विच कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। एक प्रोटीन है जिसमें 2 सब यूनिट्स हैं। ग्लाइकोजिन कंटेन्स 8 ग्लूकोज
ग्लाइकोजेनिन कंटेन्स 8 ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। अभी हमने अल्फा 1,4 लिंकेज, तो ग्लाइकोजेनिन में 8 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। These glucose molecules are added to the protein and formation of glycogen primer, जो अभी हमने यहाँ देखा प्राइमर में है। The first glucose will attach to the, अभी बात की थी उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और टायरोसिन ग्रुप के बीच में अटैचमेंट होता है, which is catalyzed by सब यूनिट ऑफ ग्लाइकोजेनिन। Then it's auto catalytically extend, तो उसके बाद एक बार जब ये प्राइमर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ग्लूकोज के molecules add होते जाते हैं, and this glucose molecule is donated by UDPG. UDP glucose, UDPG is UDP glucose, जो यहाँ पे UTP के साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अटैच होने से बना था। तो हर UDP एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता जाएगा और उसमें एक एक ग्लूकोज को जोड़ता चला जाएगा। Now next step is glycogen सिंथेसिस ग्लाइकोजन। अब प्राइमर बन गया, अब प्राइमर के बाद उसमें बार बार उसमें ग्लूकोज को ऐड करना है, तो ग्लाइकोजन उसमें जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज नोन एज ग्लाइकोजन सिंथेज ट्रांसफर्स। ग्लाइकोजन सिंथेज, this is the name of enzyme, transfer glucose from UDP glucose to glycogen फॉर्मिंग अल्फा 1,4 लिंकेज। अब अल्फा 1 रो लिंकेज से एक के बाद ग्लूकोज ऐड होते जाएंगे। द सेम एंजाइम्स कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा 4 लिंकेज। ये लिंकेज में भी ये हेल्प करते हैं। कौन से एंजाइम? ग्लाइकोजन सिंथेज। नाउ अब ये सीधा चेन बना दिए, लगभग 10 ग्लूकोज ऐड होने के बाद अब क्या करेंगे, ये इसमें ब्रांचिंग बनाएंगे, बिकॉज पहले ही हमने देखा कि ग्लाइकोजन एक ब्रांच्ड मॉलिक्यूल है। तो अभी जो ये ऐड हो रहा था ग्लूकोजन, दैट इज ऑन a straight chain में 1/4 लिंकेज के थ्रू ऐड होता जा रहा था। Now the formation of glycogen branches, sorry the spelling of branch is wrong. The final step is the formation of glycogen branches caused by the effect of the enzyme is known as branching enzyme, which transfer a small fragment of about 5 to 8 residue. वो जो स्ट्रेट चेन में से 4 या 5 या 6 को तोड़कर 1,6 में लिंक कर देता है, क्योंकि ब्रांचिंग का लिंकेज क्या था? अल्फा 1,6 लिंकेज। तो ये ब्रांच स्ट्रेट चेन में से तोड़कर उसको 1,6 पोजीशन पे ऐड करता है और ब्रांचिंग का फॉर्मेशन हो जाता है by linked by alpha 1,6 bond. This action causes the formation of new non-reducing end. The final result is the elongation and branching of the glycogen chain. इसी तरह से फिर linear chain बनेंगे, फिर branching बनेंगे, ऐसे elongation होता जाएगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, and the process of glycogenesis utilize 2 molecules of ATP, 1 molecule is needed. पहला स्टेप में जहां ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ था 1 मोल हुआ था, और दूसरा कहां पे? जब UDP से UTP। तो टोटल इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज इज हैज चेंज्ड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। यहाँ पे एक ATP यूज हो रहा है, ATP इज चेंज इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट यहाँ पे जुड़ गया किस पोजीशन पे? 6 पोजीशन पे। अब उसका सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगा 6 से 1 में, तो बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। एंजाइम इज म्यूटेज। उसके बाद UTP आएगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ATP? हियर दिस इज यूरेसिल। UTP और UTP में से एक पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा तो 2 बचेगा, एक फॉस्फेट निकल गया तो 2 बचा, ये 2 UDP ये अटैच हो जाएंगे ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज के थ्रू, इसके साथ ग्लूकोज के साथ। दिस इज द एंजाइम नेम, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। अब जो बन गया वो, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ क्या अटैच हो गया? UDP। तो नाउ इट इज नोन एज UDP ग्लूकोज। अब उसके बाद ग्लूकोज प्राइमर के थ्रू जो ग्लाइकोजेनिन है, वहां एक UDP यहाँ पे ये ब्रांचिंग एंजाइम या ग्लूकोज अगर N नंबर है तो इसमें एक ग्लूकोज जोड़ देंगे और ग्लूकोज N+1 बन जाएगा, एक यूनिट जोड़ता जाएगा, तो ब्रांचिंग है। ये डिटेल्स में आप देख सकते हैं, उसका डिटेल है हियर। दिस इज आउटसाइड द लीवर, ये दिस इज इनसाइड द लीवर, this is outside the liver,
अल्फा डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है हमारे पास, फ्रॉम द डाइट टू लिवर बाय पोर्टल ब्रेन, greater insulin release from pancreas stimulates the enzyme. This is glucose, it is outside the liver, it will enter the liver for the glucogen synthesis. Number 1 step क्या था, again I am repeating, it is phosphorylation of ग्लूकोज, मतलब इस ग्लूकोज में फॉस्फेट होगा. अब यहाँ इसमें देखिए, इसमें कहीं फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ गया 6 पोजीशन पे, यहाँ 6, ये 6 पोजीशन है, तो और एक एटीपी यूज हुआ, ATP is changed into ATP. ये द एंजाइम का क्या नाम था, ग्लूकोकाइनेस. लीवर में अगर होगा तो ग्लूकोकाइनेस, और अगर मसल्स में होगा तो हेक्सेकाइनेस. अब ये क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे फॉस्फेट हो गया. उसके बाद अब इसका ये आइसोमेराइजेशन होगा. अब ये जो फॉस्फेट है ये 1 पोजीशन पे आएगा, ये 1 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 6 पोजीशन से 1 पे आ जाएगा. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ये एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. अब यहाँ 6 से ये 1 पे आ गया फॉस्फेट, ये 6 पे 1 पे आ गया. अब उसके बाद यूटीपी से यूडीपी इसमें ज्वाइन होगा, आइसोमेराइजेशन हो गया. अब यूटीपी कन्वर्ट द यूएमपी कपल विद ग्लूकोज 1 टू यूडीपी ग्लूकोज. अब एक यूटीपी में से एक पायरोफॉस्फेट निकल गया, तो बच गया 2. ये 2 जो यूडीपी हैं वो ग्लूकोज के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, यूटीपी ग्लूकोज बनते हैं, और एक पायरोफॉस्फेट बाहर निकल जाता है. अब उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, और उसमें ग्लाइकोजन प्राइमर जो ग्लाइकोजेनिन थी उसके थ्रू ये अटैच होके एक मॉलिक्यूल जोड़ता है N+1, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जोड़ा अल्फा लिंकेज में. उसके बाद फिर ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू ऐसे कर करके ये जोड़ते जाएंगे, जब 10 बन जाएंगे, लगभग 10 से हो जाएंगे, तब ये ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं. और उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम के थ्रू ये ब्रांच्ड ग्लाइकोजन यूज करते हैं. और ये ग्लाइकोजन प्राइमर जो हमने ग्लाइकोजिनिन की बात की थी वहां पे, उसको यूज करते हैं. और ग्लूकोज अटैच टू द ग्लाइकोजन एंड कन्वर्टेड इनटू यूडीपी. और यहाँ से हमेशा एक यूडीपी यूज होता जाता है और एक ग्लाइकोजन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जोड़ता जाता है. तो टोटल कितना इसमें ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, 1 एटीपी स्टेप 1 में और 1 यूटीपी स्टेप 3 में. Now what are the functions of glycogenesis? So glycogenesis is used to create glycogen from glucose, storing the energy within the bonds for the future use. Future use के लिए हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के रख लेते हैं. ग्लूकोज itself cannot be stored for a number of reasons. ग्लूकोज को हम लोग as it is स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके स्टोर करते हैं, ताकि जब जरूरत हो तुरंत वो ग्लाइकोजिनोलिसिस के थ्रू वापस ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस हो जाए और हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाए. To save energy for time for no food take, organism must have backup sources. When the cells has depleted all their glucose and not receiving more from the body, they can turn to their store of glycogen. जब ब्लड में जरूरत नहीं है ग्लूकोज की तो वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएंगे. मसल सेल्स फॉर एग्जांपल कॉमनली यूज ग्लाइकोजेनेसिस टू प्रोवाइड एनर्जी व्हाइल एक्सरसाइजिंग because the blood glucose concentration or not sufficient. अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्लड में उतना ग्लूकोज नहीं है जो आपको मसल्स को स्ट्रेंथ दे, उस समय ये ग्लाइकोजन जो मसल्स में सिंथेसिस होता है उनको वहां पे उसका ग्लाइकोजेनेसिस, वहां से वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज कर मसल को स्ट्रेंथ देते हैं. The idea of carbo loading, that is eating carb and sugar before the athletic event. कुछ अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एथलेटिक इवेंट में जा रहे हैं, तो पहले कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट सेल विल अंडरगो ग्लाइकोजेनेसिस एंड स्टोर एज मच ग्लाइकोजन एज पॉसिबल. जब किसी भी हैवी एक्सरसाइज या हैवी गेम्स के पहले उन लोग की डाइट बहुत अच्छी रहती है, ताकि उनका जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड रहे मसल्स में, और जब वो अपना खेल खेलेंगे या करेंगे उस समय उनको एनर्जी की जरूरत होगी तो वो वहां से मिल जाएगा. Thus, when they need the energy during the exercise, it is readily available by glycogenolysis.
ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को टूटना, इट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस. नाउ व्हाट आर द रेगुलेशन? कौन रेगुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को? अभी हमने पढ़ा इंसुलिन तो करता ही है, बिकॉज इंसुलिन इज द regulator of glucose metabolism. The formation of glycogen primarily depends on the level of glucose in the blood as well as the level of glycogen in the liver and muscle tissue. कितना ग्लूकोज ब्लड में और मसल्स में है, इस पे डिपेंड करता है आपका ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन. द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन इन द बॉडी आल्सो अफेक्ट the level of release of glycogen. These enzymes are adrenaline. It inhibits glycogen synthase and the activation of glycogen. ये inhibit करता है adrenaline. इंसुलिन इट अफेक्ट इट्स अपोजिट टू द एड्रीनलिन. ये उल्टा इफेक्ट करता है एड्रीनलिन से. इंसुलिन बाइंड्स टू प्रोटीन प्राइमर एंड विल बी कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म विद द एड ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेस. एज अ रिजल्ट the blood sugar level is decreased even after consuming carbohydrate rich food. ये इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ने से ग्लाइकोजन सिंथेसिस बढ़ जाती है. इफ द बॉडी इज नॉट इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, द पेशेंट सफर फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन नोन एज डायबिटीज. कैल्शियम आयंस भी है. इट एक्टिवेट, ये कैल्शियम आयन के जरूरत प्रेजेंस में ग्लाइकोफॉस्फोराइलेशन होता है. इट एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड एट सेम टाइम इट्स इनहिबिट ग्लाइकोजन सिंथेसिस. नाउ दिस इज अबाउट glycogenesis. Thank you. In next class, we will do glycolysis.